Hello guys, welcome back to We.The.Doctors, and this is another session of pathology. And welcome back guys. Today we are going to continue with our pathology series, and in this session we have completed previously about cell injury, reversible, irreversible, apoptosis, necrosis, every types of cell injury and basic cell adaptations as well. If you have not watched those lectures, you can go back to our channel, and there you will get the series of pathology playlist and you can watch all the lectures. Today we are going to start about immunology. Okay, so इम्यूनोलॉजी एक्चुअली डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. कुछ इम्यूनोलॉजी का पार्ट जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात होती है, दैट इज इन द माइक्रोबायोलॉजी. बट जो प्रिंसिपल्स हैं और इम्यूनोलॉजी हमारी बॉडी में काम कैसे करती है, व्हाट आर इट्स मैकेनिज्म्स एंड टाइप्स, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन पैथोलॉजी. सो फॉर इम्यूनो I have arranged the immunology into 4 or 5 lectures, which you will get weekly. And guys, also reminding you about the tomorrow's platform. Our platform is just going to be a very diverse platform on YouTube of We.The.Doctors, where we are going to start about 5 subjects from Monday, starting tomorrow, 5th April, every day 4 p.m. at Ukrainian time, or if you are watching from India, 6:30 p.m. or according to that, you can check your time zones. So we are going to start all the subjects: physiology, anatomy, microbiology, pathology, and pharmacology as well, in a detailed, integrated fashion, clinically oriented. Everything will be oriented to clinical scenarios and what happens really in the clinic. So we have tried our best to give you the best content possible and for free as well. So our today's target will be to just have a basic overview of immunology, how our immunity works and what are the basic types of immunity. ओके, जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर कैसे इम्यूनिटी बनती है, और एक न्यूबॉर्न बेबी एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आया है जहां पर बहुत टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, हवा में भी इतना इन्फेक्शन होता है, तो कैसे उनसे फाइट कर पाता है. सो इन द सीरीज, इन दिस इम्यूनोलॉजी सीरीज, आप इसके बारे में भी जानेंगे कि मदर से बच्चे को कैसे इम्यूनिटी मिलती है. And in the microbiology, when immunology will come, so the microbio teacher Sankit Jain will going to be teaching you the microbio. So every relevant links, the PDFs of these lectures, everything will be available in the description, so you can go and have a look there. Okay, so let's start with the immunology session today, where we are going to have a discussion about types of immunity. Okay, so what are the basic types of immunity? Basic 11th 12th class की चीजें हैं. So first is innate and acquired. Okay, पहले इनके नेम से ही कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं जितना हम एक्वायर कर सके फ्रॉम द नेम ओनली. एक्वायर्ड मींस वी विल गेन. ओके, एंड रिमेंबर वी डू नॉट गेन एनीथिंग फ्रॉम आवर बर्थ. ओके, जो भी हमें गिफ्ट में मिला है फ्रॉम आवर मदर, दैट इज अ गिफ्ट. सो दैट इज द इनेट इम्यूनिटी, दैट इज नॉट वी हैव गेन्ड बाय आवरसेल्व्स. ओके, व्हाटएवर इम्यूनिटी जो आप अपनी दम पे, लाइक व्हेन जब भी आपको कोई इंटरेक्शन होगा विद एनी पैथोजन, विद एनी केमिकल, और जो भी उससे रिलेटेड आप immunity build करेंगे, that is acquired. And acquired immunity, because it is acquired by yourself, so it is very adaptive. Okay, according to the conditions, according to the pathogen, ये act करेगी, and it is very much actionable. Actually actionable दोनों ये यहाँ पे. actionable का मतलब ये है that it is more potent, it is more stronger. Okay, and what is innate? innate बहुत natural है, because we have got this from our mother. Okay, it is native, जो हर मदर की अपनी अपनी है, सो हर मदर वाली बच्चे में भी आ गई, सो इट इज नेटिव. एंड नाइव, यानी बहुत ही मासूम सी इम्यूनिटी. वाई? बिकॉज भी मासूम और उसको अपनी मम्मी से मिली है. ओके, सो यू कैन रिमेंबर इट दैट वे. जस्ट बेसिक आइडिया है कि जो इनेट इम्यूनिटी है, वी हैव एक्वायर्ड इट सिंस बर्थ. ओके, एंड आफ्टर द एक्सपोजर टू द एंटीजन, जब भी कोई नया एक्सपोजर होता है एंटीजन में, फ्रॉम द न्यूबॉर्न बेबी टिल द एज यू डाई, हमारी बॉडी हमेशा नई नई इम्यूनिटी अगेंस्ट न्यू पैथोजेंस बिल्ड करती रहती है. लाइक इट इज अ कोविड का जमाना है जैसे. ठीक है, सो इसके अंदर क्या है कि आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा वर्ल्ड में जो कोविड से इंटरैक्ट नहीं हुआ होगा. आई मीन टू से कि हर कोई ऐसा नहीं, सबका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया ही है और आएगा ही. दिस कोविड विल एंड इवेंचुअली, एंड कुछ लोग होंगे जिनका पॉजिटिव टेस्ट कभी नहीं आया. सो थैंक्स गॉड टू दैट. बट आई एम सेइंग दैट कोविड जो वायरस है वो कभी ना कभी इंटरैक्शन की फॉर्म में जरूर किसी ना किसी को टच तो हुआ ही होगा हमेशा, लेकिन हर कोई बीमार तो नहीं हुआ. सो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब वो पैथोजन एक्सपोज हुआ, बहुत ही स्मॉल शायद क्वांटिटी में हुआ होगा या बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, जिससे वायरस उस पेशेंट को अफेक्ट तो नहीं कर पाया, उस ह्यूमन बीइंग को, लेकिन उसने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली उस ह्यूमन बीइंग ने, और शायद नेक्स्ट एक्सपोजर के अंदर शायद उसकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है अगेंस्ट कोविड. सो दीज ऑल थिंग्स कैन हैपन. जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ द कोविड बिकॉज इट्स अ रीसेंट लेटेस्ट एग्जांपल, बट यू कैन कोरिलेट इट विद एनीथिंग. ओके, सो it is built after an exposure to antigen. Okay, now
बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि हमारी इम्यूनिटी में हमारी बॉडी में हमेशा मेमोरी होती है। लाइक हम वैक्सीनेशंस लेते हैं, ओके। वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? हमें बचपन के अंदर जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का एक वैक्सीनेशन दिया जाता है, या फिर हमें जैसे कि बहुत बेसिक जैसे कि कॉलेरा का, जैसे मलेरिया का, बच्चों को वैक्सीनेशन देते हैं। चिकन पॉक्स का तो क्यों देते हैं वो वैक्सीनेशन? वाई? बिकॉज वैक्सीनेशन के अंदर या तो हम लाइव पैथोजेंस या फिर हम डेड पैथोजेंस, डिपेंडिंग ऑन की वैक्सीनेशन कैसे बनी है, हम एक्चुअल में उसको पैथोजन ही दे रहे हैं जिससे वो बच्चा कुछ थोड़ा सा बीमार हो जाए और उसकी बॉडी में इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाए अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन और मेमोरी क्रिएट हो जाए, okay, and hence the memory will work in both type of immunities, be it acquired or be it innate, okay. Now सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है दैट इज स्पेसिफिसिटी का। मींस जो innate इम्यूनिटी है जो हमें अपनी मदर से मिली है वो हर टाइप के पैथोजन को सिमिलर वे से किल करेगी, ओके। सपोज करते हैं कि जो innate इम्यूनिटी है उसके पास क्या है मारने के लिए? नाइफ। वो हर पैथोजन को कैसे मारेगी? नाइफ से स्टैब करके, ठीक है, नाइफ से स्टैब करके सबको मारेगी वो। लेकिन कोई पैथोजन स्ट्रांग होगा जो शायद नाइफ से नहीं मरेगा, इसीलिए इनमेट इम्यूनिटी कई बार फेल हो जाती है बिकॉज इट डज नॉट हैव स्पेसिफिसिटी। बट सपोज करते हैं हमारी एक्वायर्ड एंटीजन के पास क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास गन्स। और किस टाइप की गन्स? हर टाइप की गन्स, ओके। सबने पबजी तो खेला ही है, कॉल ऑफ ड्यूटी तो खेला ही है, उसमें कितनी टाइप्स की गन होती है? बस उससे भी ज्यादा गन्स है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास, क्योंकि हर पैथोजन स्पेसिफिक गन से मरेगा, ठीक है। कोई पैथोजन हल्का सा ही है तो हमें उसको एक गोली में मर जाएगा, कोई है बजूका से मरेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन द पैथोजन। इसीलिए हमें स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम आती है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ innate immunity and then eventually we'll go to acquired immunity, okay. So let's depict components of innate immunity first. सबसे पहले innate immunity में क्या आते हैं? बैरियर्स, आउटसाइड बैरियर्स जो एपिथेलियल बैरियर्स हैं, और सबसे क्लासिक बैरियर जो हम सबको पता है दैट इज द स्किन, ठीक है। स्किन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर। सो सबसे पहले स्किन, और अगर हम इनसाइड लाइनिंग की बात करें देयर इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन व्हिच आल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर, ओके। जैसे कि क्लासिक एग्जांपल कैन बी नेजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल द फेगोसाइटोसिस जो मेरी बॉडी में होती है, ऑल द टाइप्स ऑफ फेगोसाइट्स, डिफरेंट टाइप के, व्हिच मेजॉरिटी आर न्यूट्रोफिल्स या फिर मैक्रोफेजेस, ठीक है। और भी हैं डेंड्राइटिक सेल्स, मास्ट सेल्स, ऑल दीज कैन अल्टीमेटली लीड टू फेगोसाइटोसिस। सो जितने भी टाइप के फेगोसाइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स हैं इनेट इम्यूनिटी के, बिकॉज हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस दे आर डेवलप्ड सिंस बर्थ, ओके। हमको अपनी मदर से ही वो जीन मिलता है जिससे हमारी बॉडी में मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स का ग्रोथ चलता रहता है, ओके। नेक्स्ट, देयर आर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ओके। इन फुल पैथोलॉजी, कंप्लीट पैथोलॉजी में, खासकर नियोप्लाज्म्स और इम्यूनोलॉजी के फर्दर लेक्चर्स में हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में खूब बात करेंगे। तो जितने भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होंगे वो सब किसका कंपोनेंट है? दे आर द कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, बिकॉज वापस वही मैक्रोफेजेस की तरह उनका भी जीन हमको अपनी मदर से मिला है या फिर फादर से, मतलब जो भी है, ठीक है, जेनेटिकली है वो, तो हमें फ्रॉम बर्थ एग्जिस्ट करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट, देयर आर NKCs which are natural killer cells, and what are they? They are innate lymphoid cells. Innate means of course then again हमको अपनी मदर से मिला। lymphoid cells, as we all know, हमारी बॉडी में lymphoid टिश्यू का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। ऑल्सो इज इट्स लाइक अ असिस्टेंट टू द ब्लड, ठीक है, ये ब्लड के लिए असिस्टेंट भी है। व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से दिस इज अ ब्लड वेसल, ओके, और इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन ब्लड बहुत स्पीड में फ्लो करता है, तो कई बार इस कैपिलरी में से या इस आर्टरी में से कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं। अगर वो गिर गई तो वो वेस्ट हो जाएंगी, इसीलिए इस ब्लड के नीचे नीचे कौन चलता है? इसका असिस्टेंट, और इस असिस्टेंट का ही नाम है लिम्फ, यानी लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स रन अलोंग फुल बॉडी अलोंग विद द ब्लड वेसल्स, ताकि अगर ब्लड वेसल्स में से कुछ गिर गया तो वो लिम्फ में आ जाए और लिम्फ वापस वो किसको दे देगा? हार्ट को, और हार्ट फिर वापस आगे उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में डाल देगा। तो पहला फंक्शन लिम्फ का ये होता है, एंड दूसरा लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जहां पर टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन, वो हम आगे बात करेंगे, ओके, वो होती है और इम्यूनिटी में हेल्प करता है। सो वन ऑफ द सेल्स इज NKCs, वी विल टॉक अबाउट NKCs इन जस्ट इन अ मिनट, एंड देयर आर आल्सो सम पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, जिसकी बात व्हेनेवर इट विल कम एग्जांपल में तब आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट NKCs. NKCs यानी आई हैव टोल्ड यू दे आर द नेचुरल किलर सेल्स। मतलब भगवान ने इनको बनाया ही क्यों था? दे आर द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग एंड दिस इज देयर नेचर। मतलब इनके नेचर में ही है किल करना, ठीक है। दे आर नेचुरल इनबॉर्न मर्डरर्स। तो दे आर एक्चुअली लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स ही हैं, लेकिन इनके जो ग्रैन्यूल्स हैं दे आर बिगर इन साइज, ओके। नाउ हाउ आर दे स्टिमुलेटेड? दे आर स्टिमुलेटेड बाय इंटरल्यूकिन्स। हाउ मेनी?
3 interleukins. Which one? 2, 12 and 15. So 2, 12 and 15. These are the interleukins which will stimulate the large granular lymphocytes or the NKCs. Okay, and what is their marker? अब मार्कर का सबसे पहले एक सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं कि पैथोलॉजी में आप हर जगह मार्कर्स पढ़ोगे, और इवन जब भी आप कंप्लीट ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, इट्स अराउंड 106 टेस्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं उसमें, तो उसके अंदर लिखा होता है लिवर प्रोफाइल टेस्ट, ठीक है, लिवर मार्कर्स, किडनी मार्कर्स, कार्डियक मार्कर्स बहुत कॉमन है, लिवर मार्कर्स। तो वो मार्कर्स होते क्या है? वो मार्कर्स एक्चुअली ये है कि अगर इन मार्कर्स का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो किसी एक सेल की एक्टिविटी को डिनोट करते हैं। मतलब अगर किसी पेशेंट की बॉडी में CD16 का लेवल इंक्रीज है या फिर CD56 का लेवल इंक्रीज है, तो हम पता कर सकते हैं कि यस, इसकी बॉडी में कौन एक्टिवेटेड है? NKCs, बिकॉज NKCs का मार्कर कौन है? CD16 या CD56. सो दे एक्ट एज अ मार्कर टू डिनोट द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। लेकिन इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि सपोज करें आपके पास एक पेशेंट आया, ओके, एंड इफ दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्शियस डिजीज या फिर एक ऐसी डिजीज जहां पर उसको पैथोजन ने अफेक्ट किया है, और वहां पर फेगोसाइटोसिस नॉर्मली पेशेंट में होना चाहिए, एंड यू नो दैट लिम्फोसाइट्स इस इन्फेक्शन में एक्टिवेट होते हैं, बट व्हेन यू चेक फॉर द लेवल्स ऑफ CD16 और CD56, उनके लेवल्स डाउन थे। इसका मतलब अगर CD16 और 56 के लेवल्स डाउन है, इसका मतलब ये किसके मार्कर है? दे आर द मार्कर्स ऑफ एग्जैक्टली NKCs। इसका मतलब NKCs उसकी बॉडी में एक्टिवेटेड नहीं है, या फिर NKCs उसकी बॉडी में काम ढंग से प्रॉपर्ली नहीं कर रहे। ओके, सो दिस इज अबाउट हाउ मार्कर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस एज अ क्लिनिशियन। ओके, आपको क्योंकि हम क्लिनिकली तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली चीज मेरे क्या काम की है। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के आपको MCQs पास नहीं करने हैं। वी ऑल हैव टू बी गुड डॉक्टर्स, सो एवरीथिंग व्हिच वी आर स्टडीइंग शुड बी क्लिनिकली ओरिएंटेड, क्लिनिकली रेलिवेंट, और हमें पता होना चाहिए कि भाई मैं इसको पढ़ क्यों रहा हूं, मेरे को क्या बेनिफिट होगा इससे। ओके, नाउ talking about the function of the NKCs, they are the receptors actually for IgG cells, and sorry, only IG, not IgG or whatever. Okay, हर टाइप की एंटीबॉडी का रिसेप्टर किस पे प्रेजेंट होता है? NKCs पे। सो अगर ये कोई NKC है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से रिसेप्टर लगे होते हैं जिसपे कोई भी आके एंटीबॉडी क्या कर सकती है? बाइंड कर सकती है और आगे फंक्शन कर सकती है। ओके, ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर टॉक्सिसिटी। अब ये सब भी हमें पता है कि अगर एंटीबॉडी वहां पर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली दे आर डिपेंडेंट फॉर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी डिपेंडेंट फंक्शन। और एंटीबॉडी का क्या फंक्शन है? दे क्रिएट अ टॉक्सिसिटी इनसाइड द सेल जहां पर पैथोजन एक्यूमुलेट हो रखा है एंड इवेंचुअली विल किल दैट सेल। ठीक है, सो एंटीबॉडी डिपेंडेंट मैकेनिज्म के लिए, एंटीबॉडी डिपेंडेंट फंक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? NKCs, बिकॉज दे हैव अ रिसेप्टर फॉर व्हाट? एंटीबॉडीज। सिंपल एज दैट। ओके, नाउ इन अ ब्रीफ let me talk about pattern recognition receptors. What are they? See, ये एक रिसेप्टर है जिससे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आके बाइंड करेगा, एंड ये किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? रिकॉग्नाइज सम पैटर्न। अगर मेरी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है तब ये बाइंड करेंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर मेरी बॉडी में किसी टाइप के बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया इज अ पैटर्न, मतलब बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया या तो सेल वॉल वाला हो सकता है या विदाउट सेल वॉल वाला भी, ठीक है। अगर वो एंडोटॉक्सिन रिलीज कर रहा है, एक्सोटॉक्सिन, तो उसके अकॉर्डिंग एक पैटर्न है मेरी बॉडी में, तो कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा? टोल लाइक रिसेप्टर। अगर फंजाई आए तो कौन सा रिसेप्टर? सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर। और दोनों ही बैक्टीरिया और फंजाई के रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, यानी आउटसाइड द सेल, ऑन द सेल मेम्ब्रेन। एंड व्हाट आर दे? फॉर बैक्टीरिया दे आर द टोल लाइक रिसेप्टर, एंड फंजाई इट इज सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर। ओके, फॉर द वायरस it is Reg receptor, and there is also nod receptor. ठीक है, nod receptor की बात एक सेकंड में करते हैं, बट उससे पहले they are the intracellular. I have a small diagram for you. This diagram is beautifully explained. It explains T for toll-like receptor and C for C-type lectin receptor, जो कि कैसे हैं? Extracellular. और there is N for nod receptor and R for Reg receptor, which are intracellular. Okay. अब हमने बात करी toll-like receptor किसके लिए है? बैक्टीरिया। C type receptor is for fungi. R Reg type receptor for virus. Nod receptor किसके लिए है? So let's see that. Nod receptor almost हर माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए है। हर माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए नॉड रिसेप्टर होता है। मतलब अगर कोई बैक्टीरिया आया तो वो बैक्टीरिया किस पे बाइंड होगा? एक टॉल-लाइक रिसेप्टर पे। Also it will bind to the nod receptor. Okay, so there is a question, very famous question comes to कि अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड होगा या इंट्रासेलुलर पे? सो द आंसर विल बी बोथ, क्योंकि बैक्टीरिया नॉड पे भी बाइंड होगा व्हिच इज इंट्रासेलुलर, और उसका अपना कौन सा था? टॉल, उस पे तो हो गई, दैट इज एक्स्ट्रासेलुलर। ओके,
नेक्स्ट इज नेक्रोटिक सेल्स, व्हाटएवर द सेल्स जो जिनकी डेथ हो रही है बाय द मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस. अगर आपने नेक्रोसिस नहीं देखा सो प्लीज गो टू द चैनल एंड पैथोलॉजी का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर हमारा एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के ऊपर ही था, सो यू जस्ट कैन गो एंड विजिट दैट. ओके, और नॉड रिसेप्टर कब एक्टिवेट होता है? इन सम डिजीजेस लाइक गाउट, लाइक पीरियोडिक फीवर सिंड्रोम और डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस में जनरली इन द कीटोएसिडोसिस स्टेट, या फिर जब पेशेंट एक्सट्रीम हाइपरग्लाइसीमिक है या फिर एक्सेस इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिक हो जाता है, उन सब में जनरली हमारी बॉडी ज्यादा वीक हो जाती है पेशेंट की और इन्फेक्शन प्रोन होती है, तो वहां पर नॉड रिसेप्टर ज्यादा एक्टिवेट होता है. ठीक है, अब वापस समझते हैं कि नॉड रिसेप्टर का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, या किसी भी रिसेप्टर का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि वो सब रिसेप्टर्स जो हैं अगर वो एक्टिवेट हो रहे हैं, अगर वो वायरस से बाइंड हो रहे हैं, तो मेरी बॉडी में एक सिग्नल पहुंच गया है कि यस इस रिसेप्टर पे कोई आके बाइंड हो गया है. दैट कैन बी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या कोई डिजीज की वजह से. तो मेरी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, मेरी बॉडी तैयार हो जाएगी किसी भी एक्शन को लेने के लिए अगेंस्ट दैट पैथोजन. ओके, ऑल्सो व्हाट इज दिस रिग रिसेप्टर जहां पर वायरस बाइंड होता है? इट इज रेटिनोइक एसिड इंड्यूसिबल जीन रिसेप्टर. ओके, सो यहाँ पर क्या रिलीज होगा? ये लाइक रिग रिसेप्टर इज एक्चुअली अ जीन which induces what? Retinoic acid. Okay, and it will activate further sting. ठीक है, अब इस स्टिंग के एक्टिवेट होने से क्या रिलीज होंगे? इंटरफेरॉन्स, और जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा द अमाउंट ऑफ इंटरफेरॉन्स. वी ऑल नो कि एक वायरस आया, वो जब खत्म होता है मेरी बॉडी से या फिर इवन एंट्री लेते हुए ही इट रिलीजेस एक्सेस अमाउंट ऑफ इंटरफेरॉन्स, और वो इंटरफेरॉन्स की वजह से नेक्स्ट वायरल इंफेक्शन में हमारी बॉडी इंटरफेरॉन को इम्यूनिटी की तरह प्रिपेयर कर लेती है. ओके, अब ये इंटरफेरॉन का पूरा मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये काम करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी व्हिच आई होप दैट यू विल लाइक. जो एवरी सैटरडे विल बी अ माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन. ठीक है, वहां पर आपको मिलेगा सारा लेक्चर ऑफ माइक्रोबायो, सो यू कैन विजिट देयर. ओके, ऑन आवर चैनल एंड स्टे सब्सक्राइब फॉर दैट. ओके, नाउ दिस मच इज ऑल अबाउट इनेट इम्यूनिटी, जहां पर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, उसके बाद उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, विच आर द कंपोनेंट्स, एंड लास्टली व्हाट आर द रिसेप्टर्स. मेजर डिस्कशन जो हमें करना है दैट इज अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अगेन ऑफ टू टाइप्स फर्दर, सेल्यूलर एंड ह्यूमोरल. व्हाट इज देयर मीनिंग? सी, सेल्यूलर इम्यूनिटी मींस कोई ना कोई सेल होंगे जो आएंगे और इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे, जैसे कि आप बेसिक अंदाजा लगा सकते हैं WBCs. ओके, और जैसे कि मैक्रोफेजेस. ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में कौन आएंगे? एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स उनको बोलते हैं, एंटीबॉडीज. ओके, नाउ यू शुड रिमेंबर कि जो सेलुलर इम्यूनिटी है हमारी, सेलुलर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो फाइट करती है इंट्रासेलुलर पैथोजेंस को, वो वाले पैथोजेंस जो सेल के अंदर चले जाते हैं. अब सेल के अंदर चले जाने वाले पैथोजेंस कौन से हैं, वो डिपेंड करेगा रिसेप्टर पे. ओके, एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी फाइट्स फॉर दोज व्हिच आर एक्स्ट्रासेलुलर. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. ह्यूमोरल इम्यूनिटी में कौन आएंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी हमारी एंटीबॉडीज. कितने टाइप की एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी में? 5 टाइप्स की. ओके, GAMDE. So there's a mnemonic which I know, hopes that everyone knows about, is GAMDE. So IgG, IgA, IgM, IgD, and IgE. These are 5 types of immunity. Okay. Next, what are the cellular components of the acquired immunity? They are the cells, that is B lymphocytes and T lymphocytes. So सबसे पहले बात करते हैं cellular immunity की, और उसके बाद बात करेंगे IgGs के बारे में. Okay. Now, cellular immunity, as I've told you, दो cells हैं, B lymphocytes and T lymphocytes. ज्यादा कौन से होते हैं? T lymphocytes. कितने? अराउंड 60 to 70%, B lymphocytes 20 to 30. बट एक मेजर कंपोनेंट है, एम्स के अंदर एक बार क्वेश्चन था that what are the components of cellular immunity? The options were, first option B lymphocytes, second is the T lymphocytes, third is the NK cells, and fourth is all of the above. अब बच्चों को पता है कि that B lymphocyte भी आंसर है, T भी आंसर है, so that all gone for the all of the above and it was correct. So उसके बाद बुक्स के अंदर हर जगह ये बात पब्लिश हो गई that it was clear that some of the NK cells are also a part of cellular immunity as well. अब यहाँ पर डाउट आता है because NKCs तो हमने ऊपर पढ़े थे in the cellular immunity, in the innate immunity. So up till now it is under the research और mechanism clear नहीं है, लेकिन it is said कि कुछ NKC cells अपने आप को modify कर लेते हैं और किसकी तरह ट्रीट होते हैं, किसकी तरह भी यूज आते हैं. हर पेशेंट में, हर बॉडी में, हर ह्यूमन बीइंग में उनके अपने अपने मैकेनिज्म, अपनी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, मींस यहाँ पर मॉडिफाई हो गए हैं, यानी उन्होंने अपनी इम्यूनिटी एक्वायर कर ली है. हेंस दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. वेरी स्मॉल अमाउंट,
2 to 5% ओनली, बट येस दे एग्जिस्ट. ओके गाइज, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं. इफ यू हैव एनी डाउट्स, द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन. जो इसको लाइव देख रहा है उनके लिए भी, और थैंक यू फॉर दोज जो इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं आफ्टर द लाइव. ठीक है, यू कैन, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब एंड प्लीज अटेंड द लाइव लेक्चर्स, बिकॉज लाइव इंटरेक्शन में जो भी आपका डाउट होता है वो ऑन द स्पॉट क्लियर होता है, एंड वी कैन हैव अ वेरी गुड इंटरेक्शन, जिससे क्लिनिकल इंटीग्रेशन और अच्छा बनता है. ओके, बट इफ यू आर वॉचिंग इट आफ्टर द लाइव, सो आप इसको देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो बी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, इनके बारे में कुछ फीचर्स की बात करते हैं. सबसे पहले फॉर्मेशन, ये बनते कहां पर है? बी फॉर बोन मैरो, सो ये बोन मैरो में बनते हैं. टी फॉर थाइमस, सो ये थाइमस में बनते हैं. दैट इज एन एग्जैक्टली रॉन्ग पॉइंट. ठीक है, तो इनका टी लिम्फोसाइट्स नाम क्यों है? सी गाइस, अंडरस्टैंड, मैच्योरेशन का डिफरेंस है फॉर्मेशन, मतलब बनते कब है? दोनों के दोनों सबसे पहले बनते बोन मैरो में ही है. बोथ आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो ओनली, रिमेंबर दिस पॉइंट. लेकिन मैच्योरेशन की बात होगी तो मैच्योरेशन बी लिम्फोसाइट्स का बी फॉर बोन मैरो एंड टी लिम्फोसाइट्स का टी फॉर थाइमस. तो दिस इज अ स्टार पॉइंट, और बहुत मिसकंसेप्शन है और बहुत कॉमनली एकदम गलती हो जाती है. क्वेश्चन आराम से ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन बोल रहा है या मैच्योरेशन. ओके, नेक्स्ट, लोकेशन की बात करते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स कहां पर होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स कहां पर होते हैं. सी, एवरी ऑर्गन कंटेन्स बोथ द लिम्फोसाइट्स. ऐसा कोई नहीं है कि लिवर में खाली यही होगा, वहां पर खाली यही होगा. ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गन के किस पार्ट में वो है और किस पार्ट में वो है. ठीक है, जैसे कि लिवर की बात करें तो लिवर के कॉर्टेक्स में कौन है? लिवर के कॉर्टेक्स में है बी लिम्फोसाइट्स, और पैराकॉर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट्स. स्प्लीन के व्हाइट पल्प में ही दोनों प्रेजेंट है. ठीक है, स्प्लीन इज अ पल्पी ऑर्गन, रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प होता है. जो रेड पल्प है वहां पे हेमोपोइटिक एक्टिविटी होती है, जहां पे आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, और जो व्हाइट पल्प है वहीं पर प्रेजेंट है उसके जो लिम्फोइड सेल्स हैं, दैट इज बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, दोनों. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट जीआईटी, जो माल्ट है, ठीक है, इट इज म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. सो ये लिम्फोइड टिश्यू किस टाइप का है? इट इज अ टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट. और इंट्रा एपिथेलियल पार्ट में जीआईटी के कौन से सेल्स होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स. ओके, नाउ let's talk in detail about B and T cells separately. First, we'll talk about T cells, which is a more important and more relevant to our syllabus. Okay, so the T cells के पास दो रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं? टी सेल रिसेप्टर्स, अल्फा एंड बीटा. सपोज दिस इज अ टी सेल. ठीक है, ये टी सेल के ऊपर दो रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, वन इज अल्फा एंड वन इज बीटा. दे आर द TCRs. ओके, अब टी सेल के टाइप्स की बात करते हैं और मार्कर्स की. ओके, टी सेल के टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टी सेल्स: पैन टी, टीएच यानी टी हेल्पर सेल्स, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. ठीक है, इनके मार्कर की अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मार्कर्स रॉबिन्स के अंदर हर पॉइंट पे, हर एक्चुअली 2-3 पेज के बाद एक टेबल आती है जहां पर फिर मार्कर लिखे होते हैं, और ये मार्कर का अमाउंट बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे आप नियोप्लेजिया खत्म करोगे. और सिस्टमिक में जब हम ट्यूमर्स की बात करेंगे, this amount of markers will increase rapidly. So अभी से इन मार्कर्स के एक लिस्ट बनाना शुरू करो, रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो. that will be easier for everyone. Okay, so पैन टी सेल्स में मार्कर कौन है? CD3. अगेन मार्कर का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया. अगर CD3 का अमाउंट बढ़ा है या कम है तो हम पैन टी का उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. CD4 is the marker for T helper, which we will talk just in a minute, and CD8 is the marker for cytotoxic T cell, which is a recent NEET 2019 question, and it has even appeared for 2 or 3 times in the AIMS as well. ठीक है, assertion reason में आ जाए, true false की statement, MCQ जैसे मर्जी, but a very very important point. Okay, there is a very important information about CD4 to CD8, यानी TH is to cytotoxic T cells. इनके एक रेशो होती है 2:1. मतलब T हेल्पर सेल्स या CD4 सेल्स कितने होते हैं? हमेशा डबल होते हैं CD8 से. लेकिन ये रेशो डिक्रीज हो जाती है किसमें? HIV में. ओके, व्हाई डिक्रीजेस? बिकॉज HIV किसको अफेक्ट करता है? सी, इट इज TH अपॉन CD8 इज 2/1. बट वी ऑल नो HIV किसको अटैक करता है? T हेल्पर सेल्स को. तो T हेल्पर सेल्स का नंबर कम हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर विल डिक्रीज, सो दिस रेशियो विल आल्सो गो डाउन. सो HIV क्योंकि एक्ट करता है, अटैक करता है T हेल्पर सेल्स को, इसीलिए दिस रेशियो गोज डाउन. लेकिन ये रेशियो इंक्रीज कब होती है? इन द सार्कोइड प्रोसेस. ठीक है, इन द इन्फेक्शन सार्कोइडोसिस, अगेन इज अ टॉपिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पैथोलॉजी में पढ़ेंगे इन इन्फेक्शियस डिजीज पार्ट इन द फ्यूचर. सो
अभी के लिए याद करने वाला पॉइंट कि सार्कोइडोसिस में दिस रेशियो इंक्रीजेस एंड एचआईवी में डिक्रीजेस। ओके, नाउ साइटोटॉक्सिक, इस सेल का मतलब ही क्या है? किलिंग। मतलब ये सेल डायरेक्टली क्या करता है? किलिंग करता है। इस सेल को कोई परवाह नहीं है कि बॉडी को रोकना है, क्या करना है, बॉडी की एनर्जी जा रही है। अगर इसको कोई पैथोजन दिखेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल विल जस्ट गो एंड किल द पैथोजन। ओके, नाउ टी हेल्पर की बात करते हैं। टी हेल्पर इज द मास्टर रेगुलेटर हियर, इट इज द मास्टर रेगुलेटर ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर यहाँ पर मास्टर रेगुलेटर लिखा गया है तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि कितना इंपॉर्टेंट सेल होगा जो पूरे इम्यून सिस्टम को, हमारी पूरी इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है और मास्टर है पूरे सिस्टम का। जैसे कि यहाँ पर टी हेल्पर ही है जो सप्रेशन भी करता है। लेट मी टेल यू अ स्मॉल स्टोरी की फॉर्म में। सपोज कीजिए कि एक पैथोजन आया आपकी बॉडी में, तो वो पैथोजन ने सबसे पहले हमारी इनेट इम्यूनिटी को एक्टिवेट किया, जहां पर रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए और आपकी बॉडी को पता चला कि दैट विच आर द इन्फेक्शंस जो आपकी बॉडी में अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बॉडी एक्टिवेट हुई, उसने इनेट इम्यूनिटी से थोड़ा अटैक करने की कोशिश की। इतने कौन एक्टिवेट हो गए? हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज सेल्यूलर एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज बाद में बनती है, सबसे पहले सेल्यूलर इम्यूनिटी आती है। पूरा मैकेनिज्म हम डिटेल में बात करेंगे इन द फ्यूचर लेक्चर्स, बट जस्ट आई एम गिविंग अ स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर दैट। ओके, सो क्या होता है कि सबसे पहले कौन आते हैं? पैन टी सेल्स आते हैं। पैन टी सेल थोड़ा बहुत किलिंग स्टार्ट करते हैं, वो आगे और किसको एक्टिवेट कर देते हैं? टी हेल्पर सेल्स को। टी हेल्पर सेल्स आर द मेन रेगुलेटर कि मतलब कौन सेल कहां पर किस पैथोजन को लेके जाना है मारने के लिए, क्योंकि हम हर जगह उस पैथोजन को नहीं मार सकते, क्योंकि हर जगह हमने किलिंग स्टार्ट करी तो वहां पर उसका डिब्रीज बनेगा और जिससे लाइसोसोम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब लाइसोसोम का काम है डिब्रीज क्लियर करना, अगर वो नहीं कर पाया तो ओवरलोड हो गया तो कोई भी टिश्यू डैमेज हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले प्रेफर्ड लोकेशन चूज की जाएगी। वो लोकेशन जनरली आर द लिम्फोइड टिश्यूज ओनली, तो वहां पर उनको लेके जाना, सब रेगुलेट करना। उसके बाद किसको लेके आएंगे? मैक्रोफेजेस, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, और वो आके किलिंग स्टार्ट करेंगे। अब सपोज करते हैं किलिंग हो गई, सारे पैथोजन मर गए, अब उनका स्विच ऑफ भी तो करना है ना। साइटोटॉक्सिक सेल्स को बताना है दैट डन, आपका काम हो गया, किलिंग हो चुकी है, अब आप घर जाओ। ठीक है, क्योंकि एचआईवी में क्या होता है? टी हेल्पर सेल्स आर इनएक्टिवेटेड, आर देयर नंबर आर डिक्रीज, लेकिन बॉडी को तो पता है कि एचआईवी एक एंटीजन है, फॉरेन एंटीजन है, बॉडी को किल करेगी। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स किल करते ही रहते हैं एचआईवी में, और आप बोल सकते हो कि एचआईवी इंफेक्शन में यानी एड्स में हमारी बॉडी खुद को ही मार रही है, हमारी बॉडी खुद को ही वीक कर लेती है, क्योंकि रेगुलेटर इज एब्सेंट। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद द शॉर्ट स्टोरी की टी हेल्पर सेल कैसे रेगुलेट करता है पूरे सिस्टम को, और साइटोटॉक्सिक किलिंग वाला सेल हमारी बॉडी के लिए भी कई बार डेंजरस हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी सेल्स। नाउ बी सेल्स की बात करें तो बी सेल पे भी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि टी सेल के रिसेप्टर थे, उसके रिसेप्टर्स थे अल्फा और बीटा। बी सेल्स पे जो रिसेप्टर हैं वो किसके लिए होते हैं? दो एंटीबॉडीज के लिए, आईजीएम एंड आईजीडी। ओके, नॉट फॉर ऑल द एंटीबॉडीज, ओनली फॉर टू। अब हम बात करते हैं इसका मतलब, जब भी बी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो कौन सी एंटीबॉडीज बनेंगी? एंटीबॉडी एम और एंटीबॉडी डी। लेकिन हमने तो अभी पढ़ा था कि एंटीबॉडीज होती हैं 5। ठीक है, यहां पर बनी सिर्फ एम और डी। व्हाट अबाउट जी, ए एंड ई? तो लेट्स सी, यहां पर अब क्या होता है? आइसोटोप स्विचिंग होती है, मतलब ये एम और डी किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? जी, ए और ई में। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दैट जस्ट इन अ मिनट, बट बिफोर दैट, जैसे टी सेल के हमने मार्कर्स की बात करी, वैसे बी सेल के मार्कर्स की बात करते हैं। ओके, सो वहां पर मार्कर डिपेंड करता था टाइप्स ऑफ बी सेल पे। यहां पर मार्कर जैसे आपको रिमेंबर याद करके रखना है, 19 से लेके 23, 19, 20, 21, 22, 23 और CD10। ठीक है, मार्कर्स हमेशा जनरली किस फॉर्म में होते हैं? CD होते हैं। सो इट इज CD10 एंड 19 से लेके 23। सो दीज आर 6 मार्कर्स फॉर बी सेल। ओके, पैन बी, एक पैन बी, इट्स अ न्यूली डिस्कवर्ड सेल। ओके, इसका मार्कर क्या है? CD19। ऐसा नहीं है कि ये वाला CD19 की बात कर रहा हूं, नो, इट इज अ डिफरेंट। और पैन बी सेल डिफरेंट बी लिम्फोसाइट है। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ बी सेल ओनली एंड इट हैज आल्सो अ मार्कर ऑफ CD19। ओके, नाउ को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, मतलब अगर बी सेल्स एक्टिवेट हुए, ठीक है, तो साथ में कौन एक्टिवेट होंगे? टी सेल्स भी एक्टिवेट होंगे। तो अगर कोई किसी पैथोजन ने किसको स्टिमुलेट कर दिया? बी सेल्स को। बी सेल्स आगे चल के किसको स्टिमुलेट करेंगे? टी सेल्स को, क्योंकि टी सेल्स के पास क्या है? किलिंग एबिलिटी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि टी सेल ज्यादा स्ट्रांग है या बी सेल ज्यादा स्ट्रांग है, हमारी बॉडी में इक्वल स्ट्रेंथ दी गई है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, भाई किसको मारना है। ठीक है, तो अगर बी सेल्स एक्टिवेट हुए तो हमें टी सेल्स को भी एक्टिवेट करना है। वो एक्टिवेशन कौन करेगा? बी सेल का को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल। मतलब बी सेल्स टी सेल्स को कैसे एक्टिवेट करेंगे? बाय CD40। लेकिन अगर टी सेल्स एक्टिवेट हुए
ठीक है, तो उनको किसको एक्टिवेट करना है? बी सेल्स को। वो कौन करेगा? वो करेगा टी सेल्स का को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल, यानी CD28। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दैट। लेट मी रिपीट इट अगेन, दे आर द को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर वो स्टिमुलेट हुए तो साथ में किसी और को भी स्टिमुलेट करेंगे, यानी दो ही तो है, बी और टी। अगर बी सेल एक्टिवेट हुआ तो वो टी को भी करेगा, किसके थ्रू? CD40 के थ्रू। अगर टी सेल एक्टिवेट हुआ तो वो किसको एक्टिवेट करेगा? बी सेल्स को भी, किसके थ्रू? CD28। एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो याद करना इंपॉर्टेंट है। एप्स्टीन बार वायरस के लिए रिसेप्टर कौन है? CD21, और मार्कर भी आप बोल सकते हो। इसके बाद नाउ बी सेल हैज रिसेप्टर IgM एंड IgD। ठीक है, ये हमने बात करी। तो गैम-डी में GAE और कैसे बनेंगे? सो दीज विल फर्दर चेंज द बी सेल्स इनटू द प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, यहां पर जो ये बी सेल्स हैं ये आगे एक्चुअली चेंज नहीं होगा, इन द नेक्स्ट लेक्चर ओनली, जहां पर हम हाइपर सेंसिटिविटी की बात करेंगे, वहां पर ये वाला पॉइंट आप देखोगे कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एक जनरल मैकेनिज्म है जो हर इन्फेक्शन में काम आता है, हर इन्फेक्शन में एक्चुअली एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सो वहां पर क्या होता है, जब बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो कौन से रिसेप्टर्स हैं उसके पास? IgM और IgD। वो और किसको रिलीज कर देते हैं आगे, फर्दर एक्टिवेट करते हैं प्लाज्मा सेल्स को, और प्लाज्मा सेल्स आगे चल के क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं बाकी बची हुई एंटीबॉडीज। ठीक है, अच्छा, क्या वो M और D नहीं बनाएंगे? नहीं, वो सब बनाते हैं। सी IgM और IgD था जो कि बी सेल से था, उसने किसको एक्टिवेट किया? प्लाज्मा सेल्स को, और उसकी वजह से क्या हो गई? आइसोटोप स्विचिंग। आइसोटोप स्विचिंग का मतलब क्या है? आइसोटोप मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर के, इसका मतलब सारी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेम होता है, GAMDE का, जस्ट उनका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा चेंज किया जाएगा, आइसोटोप स्विच किया जाएगा, और हमारे पास 5 एंटीबॉडीज तैयार होंगी उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। ठीक है, और इस आइसोटोप स्विचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लाइक कौन करवाता है? बी सेल विल बी द आंसर। प्लाज्मा सेल से रिलीज होते हैं, लेकिन कौन है जो रेगुलेट करता है? यू कैन से, सो रेगुलेशन करने वाला कौन है? इंटरल्यूकिन 4। Okay, so interleukin 4 is the master regulator of this isotope switching, which is done by B cells, and these antibodies are released by plasma cells. Do not confuse with the point कि ये रिलीज कहां से होती है? B cell से नहीं। ठीक है, B cell से तो M और D भी नहीं होती, B cell के पास जस्ट उनका रिसेप्टर होता है M और D का। ओके, नाउ T हेल्पर की थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। सो जो T हेल्पर सेल्स है, वी ऑल, उसका रिसेप्टर है या मार्कर है CD4। ठीक है, ओके, जो टी हेल्पर है वो 3 होते हैं, टी हेल्पर 1, 2 एंड 17। ओके, जो टी हेल्पर 1 है वो क्या क्या रिलीज करता है? इंटरल्यूकिन 2 which stimulates the natural killer cells for further killing, and इंटरफेरॉन गामा, जिससे क्या बन जाती है? ग्रैन्युलोमास बन जाते हैं। ग्रैन्युलोमास के बारे में आगे डिस्कशन होगा, ठीक है, इन द इन्फ्लेमेशन पार्ट। ओके, नेक्स्ट टी हेल्पर्स 2, ये क्या रिलीज करते हैं? इंटरल्यूकिन 4, और इंटरल्यूकिन 4 की वजह से क्या होती है? आइसोटोप स्विचिंग, जिससे M और D जो है गैम-डी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इओसिनोफिल एक्टिवेशन, और इओसिनोफिल एक्टिवेशन ही अल्टीमेट गोल है हमारा इन हाइपर सेंसिटिविटी, व्हिच इज ऑफ कोर्स अ टॉपिक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नेक्स्ट इज इंटरल्यूकिन 13। वो क्या करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस ऑफ व्हिच एंटीबॉडी? एंटीबॉडी E, IgE, फ्रॉम द, हर जगह से नहीं, ओनली फ्रॉम द म्यूकस। ठीक है, इसका प्रॉपर रोल, अगेन दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। आई हैव रिटन इट इज हेल्पफुल इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। कौन सा पार्ट? पूरा नहीं, ओनली टी हेल्पर 2। ठीक है, ओनली टी हेल्पर 2 जो क्या रिलीज करते हैं? इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13, उनके अपने अपने फंक्शंस हैं। मेन फंक्शन होता है आइसोटोप स्विचिंग का इंटरल्यूकिन 4 से, जो बी सेल्स क्या एक्टिवेट करेंगे? प्लाज्मा सेल, जिससे आइसोटोप स्विचिंग होगी, सारी मेन एंटीबॉडीज बनेंगी, फिर IgE रिलीज होगा। ठीक है, इओसिनोफिल्स बनेंगे, और हमारी बॉडी को पता चलता है कि एलर्जी हो गई। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 का जो सिग्निफिकेंस है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, दैट इज एलर्जी। ओके, लास्ट टी हेल्पर 17, वो क्या रिलीज करता है? 2 चीजें, इंटरल्यूकिन 17 एंड 22। ठीक है, और इससे क्या होगा? फंक्शन क्या है इसका? 17 और 22 इंटरल्यूकिन्स का, वो उस पर्टिकुलर साइट पे जहां पर भी इंफेक्शन हुआ है, जहां पर भी पैथोजन है, वहां पर उनको किसको बुला लेगा? इंटरल्यूकिन 17 और 22 के पास स्पेशल फोन है। उनके पास एक्चुअली फोन तो सबके पास, बस उनके पास किसका नंबर है? न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का। हर किसी के पास नहीं होता इनका नंबर, ये बहुत बड़े लेवल के किलर्स है हमारी बॉडी के। ठीक है, सो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस का नंबर है इनके पास, ये कॉल करके किसको बुला लेंगे? न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस को। कहां पर? एट दैट पर्टिकुलर साइट। सो न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस रिक्रूटमेंट। ओके, एम आई क्लियर विद ऑल दिस? अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन पॉज। ठीक है, साथ साथ आप प्लीज नोट्स बनाते रहे अपने अपने, जो भी आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, यू कैन हाईलाइट इट। ऑल्सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए
This PDF का link is uploaded in our Google Drive. So for that link, you can go in the description and check all that. Any doubts के लिए you can contact us on Instagram at We.The.Doctors और Telegram group, सबका link description में है, और comments भी आप leave कर सकते हैं for any doubts, any suggestions and whatever. Okay, let's continue with the discussion. स्मॉल टॉपिक छोटा सा, अमिलॉइडोसिस. यहाँ पर हम इम्यूनोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी की, इसके बाद हम ट्यूमर्स की बात करेंगे, ठीक है, और इम्यूनोलॉजी में और कंटिन्यू करेंगे. बट अभी के लिए अमिलॉइडोसिस में चलते हैं कि अमिलॉइडोसिस एक डिसऑर्डर है जहां पर क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है उसकी शेप कैसी हो जाती है, मिसफोल्डेड. मतलब हमारा प्रोटीन इतना बड़ा बनता है, लेकिन इतना बड़ा तो सेल में आ नहीं सकता, तो हमारी बॉडी इसको रोल कर करके, अगेन कई बार रोल कर करके पैकेजिंग कर देती है इसकी, लेकिन वो पैकेजिंग कैसी हो जाती है, कई बार गलत. सो कौन सी डिसऑर्डर हो सकती है उसकी वजह से, अमिलॉइडोसिस. ठीक है, ये जो अमिलॉइडोसिस, अमिलॉइड्स बनते हैं इसके अंदर, अमिलॉइड्स ये कैसे बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. इसमें 95% तो फिब्रिल्स होते हैं और 5% ग्लाइकोप्रोटीन्स. ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी एंटीबॉडीज ओनली. ठीक है, अब यहाँ पर जब बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है तो हमारी बॉडी इसको भी वापस एक इन्फेक्शन की तरह ट्रीट करने लगती है, और कौन आ जाते हैं, एंटीबॉडीज. इसीलिए यहाँ पर 5% एंटीबॉडीज भी मिल सकती है. इट इज नॉट कंपल्सरी. मेन यहाँ पर अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछे तो आंसर क्या है, फिब्रिल्स. लेकिन अगर ऑप्शन में अवेलेबल है एंटीबॉडीज, सो दैट शुड बी योर प्रेफरेंस एज वेल. ठीक है, ओके. अब मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो अफेक्ट होता है एमिलॉइडोसिस में, दैट इज द किडनी. और ओल्ड एज में सबसे कॉमनली अफेक्ट होने वाला हार्ट, बिकॉज ऑलरेडी ओल्ड एज में हार्ट कंपेंसेटेड स्टेट में है, कुछ वैल्वुलर डिसऑर्डर हो गया, कोई रिगर्जिटेशन हो रखी है, कोई मर है. ठीक है, सो ऑलरेडी हार्ट वैसे ही थोड़ा वीक होता है, तो ज्यादा प्रोन कौन है, हार्ट इन ओल्ड एजेस. बट नॉर्मली इन एवरी अदर एज किडनी इज मोर प्रोन टू एमिलॉइडोसिस. बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट सम अदर ऑर्गन्स लाइक लिवर, लाइक जीआईटी में, जीआईटी के अंदर वो ऑर्गन्स को एनलार्ज कर देता है. ठीक है, इसके बाद जॉइंट्स के अंदर लाइक वेरी वेरी कॉमन कार्पल टनल सिंड्रोम. नेक्स्ट इज द स्किन. ठीक है, पिंच परप्यूरा, मतलब हल्का सा स्किन को पिंच करने पे वहीं पे स्किन कैसे हो जाती है, क्रिस्पी सी हार्ड हो जाती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, परप्यूरा. ओके, एंड टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग. अगेन जैसे जीआईटी में एनलार्ज किया ऑर्गन्स को, वैसे ही टंग के अंदर भी क्या कर दिया, एनलार्ज. दैट इज मैक्रोग्लोशिया. ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं डिजीजेस व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय अमिलॉइडोसिस. सो प्राइमरी डिजीजेस जो सबसे कॉमनली और सबसे पहले अमिलॉइडोसिस की वजह से होती हैं, दे आर, एक तो एक्चुअली दे आर माइलोमास ओनली. वन इज द मल्टीपल माइलोमा, वेरी वेरी कॉमन कैंसर, एंड अदर इज माइलोमा किडनी डिजीज. ठीक है, कि किडनी के अंदर माइलोमा बन जाता है. इसके बाद सेकेंडरी डिजीज. सेकेंडरी का क्या मतलब है कि यहाँ पर अमिलॉइडोसिस उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अमिलॉइड्स की एक्यूमुलेशन की वजह से ये डिजीज स्टिमुलेट हो जाती हैं. ठीक है, सो व्हाट आर दीज कैंसर्स, कौन कौन से टाइप के, एक तो आरसीसी, रीनल सेल कार्सिनोमा, और हॉजकिंस लिम्फोमा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉजकिंस लिम्फोमा. ओके, नेक्स्ट इट कैन अकर दैट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है इन द लिवर. ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अमिलॉइडोसिस एज अ सेकेंडरी डिजीज. मतलब अगर आपसे पूछे कि विच इज द मोस्ट कॉमन secondary disease by amyloidosis, so what it will be chronic inflammation. जैसे कि लिवर में, किडनी में, स्प्लीन में, कहीं पर भी हो सकती है. लेकिन remember the point that amyloidosis cannot cause inflammation where in bronchi. ठीक है, ब्रोंकाई में वो इन्फ्लेमेशन नहीं कर सकता, और ब्रोंकाई से लंग्स नहीं समझना, लंग्स में कर सकता है इन्फ्लेमेशन, प्लूरा में कर सकता है, इसके बाद पेरिकार्डियम में कर सकता है, डायफ्राम में, एल्वेओलाई में, बस ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन कर सकता. व्हाई? बिकॉज ब्रोंकाई आर वेरी वेरी स्मॉल, और वहां पर अमिलॉइड्स का पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ठीक है, सो इट इज नॉट सीन कि ब्रोंकाइस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई ड्यू टू अमिलॉइड्स. ठीक है, नेक्स्ट इज मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड. Then there is also Alzheimer's disease, which can be also caused by amyloids. Then chronic kidney disease. As I've told you, there are number of disorders which can be caused by amyloids in the kidney. Okay. Also, there are 2 diabetes mellitus and familial Mediterranean fever. Okay, it's a type of fever. Just you have to remember. Okay, and diabetes mellitus. So these are all the disorders which can be caused by amyloidosis. And this is pretty much it about today's lecture, where I have tried to explain you and give you a general introduction of immunology.
आज हमने इम्यूनोलॉजी स्टार्ट किया है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ी, इन्नेट एंड एक्वायर्ड, उसके सेल्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, डिटेल, रिएक्शंस जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे कि ट्यूमर, जैसे कि टॉलरेंस, ये अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं जो रॉबिन्स के अंदर बहुत ही टिपिकल लगते हैं और बड़े मुश्किल से चार्ट्स और टेबल्स बनाए हैं, which we all have tried to make as simple as that for you. Just you have to visit our channel every Thursday. Okay, pathology ka day hoga every Thursday. Let me give you a small schedule. You can get that on our channel as well, but just in case you are new to us. So for Monday we have physio. Wednesday again we have physio. So we have 2 days for the physiology. On Tuesday we will have anatomy. Thursday we will have pathology. Friday we will have pharma. Okay. Komal will be teaching the pathology and I will be teaching the pharma from the next week. Okay, from the upcoming week, I mean. Okay, and Saturday will be a microbiome day and Sunday is the free day. So I have a small plan, especially for second and third year students, that what they can do is attend all the lectures from Monday to Saturday. Okay, Friday तक I know सबके colleges भी होते हैं, so you are busy. So बस 1 घंटा आपको लेक्चर का देना है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है. मैक्सिमम 2 घंटे, थोड़ा पॉज करना है, आपको समझ नहीं आया, डाउट्स हैं, नोट्स बनाने, मैक्सिमम 2 hours a day. That is enough for you. On Saturday again माइक्रोबायो का 2 घंटा प्लस ये सब रिवाइज करने के 2 से 3 घंटे. So Saturday is 5 hour study session. बाकी दिन 2 घंटा. Sunday is again it's just a free day. So what you can do is half day तो free आप रख लो, ठीक है, just chill day. और 2-3 घंटे 2 to 3 hours just solve MCQs of all that thing जो आपने Monday to Saturday में पढ़ी है, ठीक है. By the end of this year, I hope that we will continue this and you will support us. And by the end of this year, you will have completed 6 to 7 subjects. ठीक है, more subjects incoming, medicine, surgery, OBGY. Every subject is just being planned for every one of you. So you just have to support us and visit our lectures, view our lectures, make notes, understand the concept. हर टीचर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा in the comment section, Instagram और Telegram group. Everywhere you can follow us and just throw your doubts. Learn together, grow together. Okay, so this is our just mission to make things simple for the medical community. So we hope that we will add some value to your time and thank you so much for attending today's lecture. I hope that you have learned about something about immunology, amyloidosis, a very very confusing topic. Robbins में से एक बार में किसी को समझ नहीं आता, especially मेरे को नहीं आया. Okay, so I hope I have tried to make a bit simpler for you. ऐसा नहीं है कि amyloidosis खत्म हो गया, amyloidosis अभी बहुत है, लेकिन मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है. Now you can go and read once Robbins. I hope अब आपको समझ में आएगी Robbins, ठीक है. So thank you so much for joining in, guys, and I hope to see you next time from Monday at 4 p.m. every day. We will have lectures, so please just stay tuned, subscribe to our channel. Okay, thank you so much, guys, and thank you and see you next time. Bye bye, take care.